We are studying heat transfer mechanisms. We have already studied two of the major heat transfer mechanisms. One is known as conduction and the other one is known as convection. For conduction, we have studied that whenever there is a solid and we want to transmit heat through solid, so through a solid we will observe the phenomena of conduction through the solids, which is helping us to transmit heat through the solid. So what happens in conduction, we have already studied that in solids the material, the atoms or the molecules are fixed to their mean positions and they can only vibrate about their mean positions. So whenever we are providing heat energy to the solid, we are about to increase the energy of the atoms, and this increased energy will result in increased vibrations, and these increased vibrations will definitely result in the number of increased collisions, and these collisions definitely transmit energy by head-on collisions. One atom will collide with the other atom, and the other atom will transmit that energy to the third atom, and the cycle goes on. This is our conduction. Second one was convection. In convection, we have studied that the transfer of heat is occurring by the complete motion or by the mass transfer of the molecules or atoms from one place to another place. This phenomena is usually observed in liquids and gases. For fluids, we can say in general, and the molecules are continuously in motion until unless the whole system attains the same temperature. Now the third one mechanism we are going to study for the transformation, for the transference or the transmission of heat energy is radiation. एंड फॉर रेडिएशन लेट्स से कि हमारे पास इस मेथड, सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रेडिएशन. रेडिएशन इज़ द मेथड दैट कैन ट्रांसफ़र हीट from one place to another, but there is no medium required. It can transfer heat energy in through vacuum. और वैक्यूम की अगर हम बात करें, अच्छा हमने ये बात पढ़ी कि अगर वैक्यूम हमारे पास कभी भी हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो वी गॉट सम वेव्स. वी आर फेमिलियर विद द टर्म वेव, और हमने ये बात की थी कि हमारे पास वेव क्या करती है. वेव इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी. तो हमारे पास हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट हीट थ्रू वैक्यूम. तो अगर हम वैक्यूम के थ्रू हीट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो देयर इज़ ओनली वन वेव दैट कैन ट्रांसमिट थ्रू वैक्यूम, एंड दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर कैरिंग thermal energy or heat energy are radiations. Okay, now we are familiar that all objects emit radiations. अच्छा, अब ये radiation and electromagnetic wave is quite similar, and we have studied the spectrum of electromagnetic wave, which involves number of waves, number of radiations like ultraviolet, infrared, radio, micro, and visible, also the thermal radiations. So all these radiations may be may be emitted by the medium. हमारे पास कोई भी मीडियम अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट द मीडियम, द ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, और दैट दोज रेडिएशंस कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज होल लिस्टेड अबव रेडिएशंस. और ये रेडिएशंस जो है हमारे पास, इनका एमिशन रेट डिपेंड कर रहा होता है. हमने ऑलरेडी ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एफएससी प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपनी, और ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उस पर हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि हमारे पास जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और वो कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीट, तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि लाइट उस हमें विजिबली अपने मटेरियल के अंदर चेंज नज़र आता है. पहले वो आपके पास रेड होता है, रेड के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो सिल्वर की तरफ चला जाता है. तो आपका जो मटेरियल है जिसको आप हीटअप कर रहे हैं, बेसिकली आपकी जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, दैट रेडिएशन इमिटेड इज़ बेसिकली विजिबल लाइट हमारे पास इमिट हो रही है. तो वो हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन मैनी ऑफ द
फीचर्स ऑफ द मीडियम मटीरियल या ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो लिस्ट में आपके पास आते हैं, फर्स्ट वन इज़ द कलर, सेकंड इज़ द टेक्सचर ऑफ द सरफेस। अगर आपके पास कोई शाइनी सरफेस है तो शाइनी सरफेस से निकलने वाली रेडिएशंस का बिहेवियर डिफरेंट होगा, और अगर आपके पास कोई सरफेस जो रफ़ सरफेस है तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस का बिहेवियर डिफरेंट होगा। सिमिलरली आपके पास अगर आपके पास सरफेस जो है उसका एरिया कम है तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस का डेफिनेटली हमारे पास बिहेवियर डिफरेंट होगा। शेप एंड नेचर ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इफेक्ट द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। सिमिलरली अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को हीट करें तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट कुछ थर्मल रेडिएशंस इमिट करेगा, और ये जो थर्मल रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, दीज थर्मल रेडिएशंस इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, सिमिलरली हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास थर्मल रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब कर रहा हो, वो हमारे पास किसी भी तरह से और किसी और टाइप ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कब वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? इफ़ द सराउंडिंग्स टेम्परेचर इज़ हायर। अगर सराउंडिंग आपके पास गर्म है और आपका ऑब्जेक्ट ठंडा है तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो सराउंडिंग्स जो हैं वो उसने टेम्परेचर, आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग का। सिमिलरली इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर लेस है तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर लेस है तो वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा और वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और तब तक वो एनर्जी रेडिएट करता रहेगा जब तक हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हमारे पास जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, हमारे पास हमने ये देख लिया कि रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमने ये भी बात कर ली कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं। और अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लें तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं या फिर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हमारे पास जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करते हैं वो हमारे पास हो सकती हैं लाइट या रेडियो वेव्स की फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास जब भी जब भी हम लोग मीडियम को स्टडी करेंगे, हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट वेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करते हैं। लेट्स से सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा तो ये आपके पास इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कर सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से इमिट हो रही हैं। तो रेडियो वेव्स आर द वेव्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स से इमिट हो रही हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन है कि अगर आपके पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, वो हॉट ऑब्जेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, वो हॉट ऑब्जेक्ट आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, और दैट ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द वैक्यूम, तो वो आपके पास जो इमिट कर रहा है रेडिएशंस, दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल बी नेम्ड एज थर्मल रेडिएशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि अगर आपके पास एक गैस है और द गैस इज़ इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपने अपनी गैस को फिल किया है एक अदद डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। वी आर ऑल फेमिलियर विद द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने अपनी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया, और जब हमने गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया है तो इट वाज ऑब्जर्व, और उसके साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब हमने अपनी गैस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो गैस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा।
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होगा हमारे पास गैस के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारे पास इमिट करेगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द सडन डिस्चार्ज, सडन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जब एकदम से गैस के अंदर, बेसिकली वी कैन से स्पार्क। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर स्पार्क दोनों सेम वर्ड्स हैं। बेसिकली ये क्या है? सडन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपके पास अगर एक गैस है और उस गैस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस गैस के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें मिलेंगी, दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। दोज आर नॉट विजिबल टू द आई, लेकिन यूजुअली इन डिस्चार्जेस के अंदर जब भी गैसेस डिस्चार्ज करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही हमें नहीं मिल रही होती, बल्कि एक सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन, दोज आर विजिबल वेव्स, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम भी हमें अक्सर ऑब्जर्व हो रहा होता है फॉर द केस ऑफ गैस डिस्चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि मेटल प्लेट। अब आप अपनी मेटल प्लेट के ऊपर क्या करते हैं? बम्बारमेंट करते हैं। किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना लाजमी है? इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे इमिट एक्सरेज, और उसके साथ ही साथ हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। तो हमने ये बात पढ़ी कि रेडियो एक्टिव मटीरियल से हमारे पास 3 तरह की रेडिएशंस यूजुअली निकल रही होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। but the alpha radiations are not alpha and beta are not the electromagnetic radiations, but gamma are the electromagnetic radiations। और हम यहाँ पे रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडिएशंस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हमें जो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोज आर गैमा रेडिएशंस। नेक्स्ट वी कैन से कि सूरज से जो हमारे पास रेडिएशन हीट एनर्जी पहुंच रही है, दैट इज़ रीचिंग अस बाय द रेडिएशन मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आ रही हैं सूरज से हमारे पास, और वो कैसे पहुंच रही हैं? बाय द रेडिएशन मेथड, जिसमें हमें मूव करने के लिए, हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एट द सेम टाइम कभी एनर्जी से डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को वो इमिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बात की जाती है कि जितने भी ज़्यादा गुड एब्जॉर्बर्स हैं, अगर कोई मटेरियल अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो मटेरियल अच्छा इमिटर होना भी लाजमी है। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक लॉ प्रोवाइड किया था। स्टीफन बोल्ट्जमैन वो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर की एक्सप्लेनेशन की थी, और उसमें उन्होंने ये बात की थी कि हमारे पास जब भी टोटल रेडिएटेड एनर्जी पर सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी मटेरियल, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। सो वी कैन से कि रेडिएटेड एनर्जी पर सेकेंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। आपका पास टेम्परेचर का, अगर आप टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ाते जाएंगे, इस लॉ से हम ये बात देख सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसके अंदर से जो इमिट होने वाली रेडिएशन है, दैट रेडिएटेड एनर्जी विल बी लार्जर। और ये बात हम लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट सेम टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट होती है। ये हमारे पास अमाउंट रेडिएटेड एनर्जी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ द मटीरियल। लाइक वी कैन से कि 200 केल्विन्स हमारे पास टेम्परेचर है, और 200 केल्विन्स के ऊपर हमने 2 अपने मटीरियल्स को हीट अप किया। फर्स्ट वन इज़ टंगस्टन एंड द सेकेंड वन इज़ मोलिब्डेनम। अब ये 2 डिफरेंट मटीरियल्स हैं हमारे पास, बोथ आर मेटल, लेकिन बोथ हैव डिफरेंट कंडक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर द कंडक्टिविटी एंड कंडक्शन। तो हम लोग ये इट वॉज ऑब्जर्व कि बोथ आर हीटेड एट 2000 केल्विन्स, लेकिन जो रेडिएशन इमिट की थी टंगस्टन ने, दोज वर 23 वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द रेडिएशंस इमिटेड बाय मोलिब्डेनम वर 19 वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ द मटीरियल काउंट्स फॉर द इमिशन ऑफ द रेडिएशन।